keep on moving faster to achieve the things. And I believe that every subject, everything, every passion is very important. Careers can only be built up if you have a passion. I've got 18 plus years of HR professional experience in different industries like IT, airlines, service-based organizations, product-based organizations, and then last year I landed up building up Zavika. So entrepreneur journey or anything can only be successful if you really feel passionate about the studies that you are doing, passionate about the work that you are doing. You will invest time, and to be honest, you will be not counting the hours. It will be the outcome that will be count. Might be you spend 18 hours, might be 24 hours. Sometimes we say we are spending 28 hours in a day. It's just the hard work that we are putting in. So that is how I see, and to be honest, to every student, every professional out here, I would just say for the students, 20s is not the age for the perfection. It's the age for the exploration. So explore yourself, make mistakes, learn faster, grow better. And for the professionals, I believe technology will keep on coming. It will be the tool to replace, but can never ever replace the heart of the organizations, that is people. So please value people, grow with people. Very right, ma'am. Very right. Thank you so much for your insight. And I totally agree to you that nothing can outshine hard work. Hard work is the seed which people plant long before the world sees the garden that they have created. Thank you so much. Now I would hand over the mic to Ms. Ritika for her insights. Hello, thank you so much, Bharti, and it's a great opportunity being here and for everyone. I also want to thank A.K. Mishra sir and Bhupender ji for having me here. Of course, I know about my panelists. I read their story. They both are very inspiring and both have more experience than me. I have around 15 years of experience into HR and specifically in learning and development space, and I worked in remotest part of the country. I have served in NHPC and been to Pithoragarh, Indo-Nepal border also. I've served as an HR. So I had various experience. Now I'm into full-on into corporate training. So the topic of today, sky is the limit. I feel that it's a mindset. It's a mindset that you can reach wherever you want. There is nothing which can stop you. If you feel like you have it in you, you can do it. So I believe that linking it to the political, which I am here in the Be the Kingmaker seminar, which is talking about how to be a political consultant. I feel that if you want to be a leader, the journey starts from within. We need to be clear about ourselves, what our values are, what our belief system are. अगर हम खुद से ही क्लियर नहीं है कि what we want in our life, तो हम कैसे दूसरों को लीड कर सकते हैं. तो लीडरशिप की सबसे बड़ी स्किल होती है कि we need to be clear from inside. बहुत बड़े लीडर्स, इवन A.K. मिश्रा सर ने भी उनका नाम लिया था, अब्राहम लिंकन हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए. ये किसी प्रिविलेज फैमिली से नहीं आते थे, फिर भी इन्होंने पॉलिटिकल में बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये स्टार्टिंग से क्लियर थे कि इनको लाइफ में क्या चाहिए, उनकी क्या बिलीफ सिस्टम है. तो लीडरशिप, अगर आप बहुत ऊपर पोजीशन में जाना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, जो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो यू नीड टू बी क्लियर फ्रॉम इनसाइड कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से. आपको अपने बारे में ज़रूर जानना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप इन लीडरशिप इज दैट यू नीड टू बी क्लियर फ्रॉम इनसाइड आउट. सेकेंडली, आई बिलीव दैट लीडरशिप में आपको पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस तो ज़रूरी है. वी नीड टू बी इंटेलिजेंट. हर चीज़ में आप देखेंगे इंटेलिजेंस हर जगह चाहिए, लेकिन उससे भी एक ऊपर की चीज़ है इमोशनली इंटेलिजेंस. आप लोगों को कैसे समझ सकते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, दूसरों के बारे में सोच सकते हैं. तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है. तो आजकल उसके ऊपर की चीज़ भी आ गई, अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन, उसके बारे में बात करूंगी. लेकिन इमोशंस को समझना एज ए लीडर आपको बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोगों के साथ एम्पथाइज नहीं कर सकते, उनके शूज़ में जाके नहीं समझ सकते, तो आप अच्छे लीडर्स नहीं हो सकते. पीपल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं फॉर बीइंग अ लीडर. सो गुड लीडर्स जो होते हैं सिर्फ बात करते हैं, और जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो सुनते हैं. तो लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ लीडर इन योर लाइफ. Second is communication. Communication can be a superpower. It can be a game changer. और कहते हैं communication 7%, एक रूल है हमारे मैनेजमेंट में कि 7% is more of the words which I speak is just 7%. 93% is my body language, how I talk, how I think, how I behave. तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है.
तो कम्युनिकेशन आपको अच्छा अगर आप रखते हैं तो वो करेंसी की तरह काम कर सकता है अगर आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। तो मुझे यही लगता है जो कम्युनिकेशन के सीज हैं, क्लैरिटी से, कन्विक्शन से, कमिटमेंट से आप पॉलिटिक्स में भी बोले तो ये मैनेजमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने HR में पढ़ी हैं वो यहाँ पे भी लगती हैं। और अकेले कोलैबोरेशन की बात भी मैं आती हूँ कि अकेले भी कोई लीडर नहीं बनता, हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाए। तो लीडरशिप एक सोलो जर्नी नहीं हो सकती, आपको लोग चाहिए जो आपके साथ जुड़े, आपके साथ कनेक्ट हो। राइट मेंटर्स, मेंटरशिप की भी आजकल बहुत बातें होती है, राइट मेंटर्स चाहिए, राइट टीम्स चाहिए आपको जो आपको एक्सेलरेट कर पाएँ और जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जा पाएँ। और चैलेंजेस जो होंगे वो हमेशा जर्नी में आएंगे, लेकिन आपको परसिवरेंस अपना मेंटेन करना होगा, कभी गिव अप नहीं करना है। हर एक इंसान के पास चैलेंजेस आते ही रहेंगे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, चैलेंजेस नहीं आए हैं। मैंने पर्सनली भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं, कभी लोकेशंस के चैलेंजेस हुए, कभी वर्क कुछ चैलेंजेस रहे, तो लेकिन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करके ही आप इंसान आगे बढ़ता है। कभी भी जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो गिव अप नहीं करना है, तो एक लीडर की ये भी सबसे बड़ी क्वालिटी है। सेकेंडली मुझे एक लास्टली लगता है कि इंटीग्रिटी भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अच्छा बैकग्राउंड से आती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि स्किल्स तो ट्रेन की जा सकती है, पर कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी जो होती है ना वो आपकी चॉइस होती है, आप खुद हो सकते हैं वो, तो दैट्स अ चॉइस। कहते हैं कि लीडर्स नहीं ऑनेस्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप टॉप लीडर्स से मिलेंगे तो वो बहुत हम्बल होंगे, वो बहुत ग्राउंडेड होंगे। जितना भी इंसान ऊंचा बढ़ेगा ना वो उतना ही ग्राउंड पे होगा। हमें लगता है कि नहीं यार ये बहुत लाइफ में आगे है, ये तो हमसे बात ही नहीं करेगा अच्छे से, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जितना इंसान हम्बल होता है, जितना ही वो ऊपर जाता है, उतना ही वो ग्राउंडेड होता है। तो इसी के साथ मैं एंड करूँगी, कोई लिमिट नहीं है आपकी इच्छाओं की, आशाओं की। आप अभी यूथ में हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो हमारी मेजर जिनके लिए ये सेमिनार है, तो आप कभी लाइफ में गिव अप नहीं करिए और किसी भी चीज़ को लिमिट मत कीजिए। आप किसी भी करियर में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में सही, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट विच आई वॉन्ट टू अगेन गिव इट टू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच।